مسجد نبوی ابھی زیر تعمیر ہے اور اللہ کے رسول وہاں امور مملکت میں مصروف ہے۔ اچانک ایک باوقار خاتون اپنے 10 سالہ بچے کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضری کی طلبگار ہوتی ہے اور اجازت ملنے پر آگے آ کر عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ، یہ میرا لخت جگر انس ہے۔ میری آرزو ہے کہ آپ انہیں اپنی غلامی میں لے لیں اور ان کے لیے دعا فرمائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک نظر معصوم انس پر ڈالتے ہیں اور بارگاہ خداوندی میں دعا فرماتے ہیں، یا الہی، اس کے مال اور اولاد میں اضافہ اور جو کچھ اسے دے اس میں برکت عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب نبی کی دعا کو شرف قبولیت بخشا۔ حضرت انس نے 100 سال عمر پائی اور ان کی اولاد اور پھر ان کے بچوں کی تعداد 100 سے زائد تھی۔ حضرت انس والدہ کی ہدایت اور نصیحت کے مطابق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں رہنے لگے اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے آخری لمحات تک ساتھ رہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت انس سے بہت محبت فرماتے تھے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ بارہا ایسا ہوا کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی کام سے باہر نکلتا لیکن کھیل کود میں مصروف ہو جاتا۔ جب کافی دیر بعد گھر واپس آتا تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام صرف اتنا فرماتے، میرے بیٹے کہاں رہ گئے تھے، اور میں آپ علیہ السلام کو سچ سچ بتا دیتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تبسم فرما کر خاموش ہو جاتے۔ خدمت کے اس 10 سالہ عرصہ میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا کہ جب آپ علیہ السلام نے میری سرزنش کی ہو یا کبھی مجھے ڈانٹا ہو۔ حضرت انس کی اس عظیم والدہ کا نام سہلہ یا رملہ، لقب غمیسہ اور رمیسہ تھا، لیکن اپنی کنیت ام سلیم سے معروف ہوئی۔ ابن سعد کے مطابق ان کا سلسلہ نسب یوں ہے: حضرت ام سلیم بنت ملحان بن خالد بن زید بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدی بن نجار۔ آپ کا انصار کے مشہور اور معروف قبیلے خزرج کی شاخ بنو عدی بن نجار سے، اور وہ حضور علیہ السلام کی حضرت عبد المطلب کی والدہ سلمہ بنت زید پوتی تھی۔ اس طرح ام سلیم حضور پاک علیہ السلام کی خالہ ہوئی۔ حضرت ام سلیم کا پہلا نکاح بنو خزرج کے ایک نوجوان مالک بن نضر کے ساتھ ہوا، جن سے خادم رسول حضرت انس پیدا ہوئے۔ ابھی مدینہ منورہ میں اسلام کی کرنیں پوری طرح منور بھی نہ ہوئی تھی کہ ام سلیم نے مشرف باسلام ہو کر انصار کی پہلی مسلم خاتون کا اعزاز حاصل کر لیا۔ ان کی شدید خواہش تھی کہ شوہر مالک بن نضر بھی اسلام قبول کر لے، مگر وہ بار بار کے اصرار کے باوجود اپنے آبائی دین پر قائم رہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ انہوں نے اسلام کی شدید ترین مخالفت بھی کی۔ انس نے بولنا شروع کیا تو ام سلیم نے انہیں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سکھا دیا۔ معصوم انس کا اپنی توتلی زبان میں کلمہ طیبہ کا ورد والد کو پسند نہ آیا۔ مذہب کے معاملے پر میاں بیوی میں اختلاف تو پہلے ہی تھا، لیکن اب بیٹے کی اسلامی تربیت نے اختلاف کی خلیج مزید گہری کر دی۔ چنانچہ مالک اپنی بیوی بچے سے ناراض ہو کر شام چلا گیا، جہاں اسے کسی دشمن نے قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ام سلیم کو صورت اور سیرت کے ساتھ بہت سی صلاحیتوں سے بھی نوازا تھا۔ وہ صبر و استقلال کے ساتھ مضبوط عزائم اور قوت ارادی کی مالک تھی۔ بیوہ ہونے کے بعد مدینہ کے کئی معززین نے ان سے نکاح کے پیغامات بھجوائے، لیکن ان کا کہنا تھا کہ جب تک انس بچپن کی حدود پار کر کے فہم و شعور کی منازل طے نہیں کر لیتے، میں نکاح نہیں کروں گی۔ چنانچہ جب انس سن شعور کو پہنچے تو ان کے اپنے قبیلے بنو خزرج کے ایک نامور شخص زید بن سہل نے آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا، جو ابو طلحہ کے نام سے مشہور تھے۔ ام سلیم ان کی نیک نامی سے تو واقف تھی، لیکن وہ بت پرست تھے۔ ابو طلحہ کے بار بار اصرار پر ایک دن انہیں بلا بھیجا۔ جب وہ آ گئے تو بولی، ابو طلحہ، تم اچھی طرح واقف ہو کہ میں ایک اللہ کی عبادت کرتی ہوں، جبکہ تم پتھر اور لکڑی کے بے جان بتوں کو پوجتے ہو۔ ام سلیم نے ابو طلحہ سے کہا، تم جانتے ہو کہ تمہارا معبود زمین سے اگی ہوئی لکڑی کا ہے، جسے انسان نے اپنے ہاتھ سے تخلیق کیا ہے۔ انہوں نے جواب دیا، ہاں ایسا ہی ہے۔
सलीम बोली, फिर इस हकीकत को जानती हुई भी तुम बेजान पत्थरों और दरख्तों की पूजा करते हो, जो बड़ी शर्म की बात है। इस गुफ्तगू ने अबू तलहा के दिल और दिमाग में हर और शऊर किसी गोशे में भी हक और ताकत की किरणों ने बातें मुनव्वर कर दिया। चंद दिन के गौर खौस के बाद एक सुबह उन्होंने अपने घर में बुतखाने को तोड़ा और मुशर्रफ ब इस्लाम हो गए। जब हज़रत उम्मे सलीम को इसकी इत्तला मिली तो उन्होंने न सिर्फ ये कि उनसे निकाह कर लिया, बल्कि इस खुशी में हक महर माफ़ करते हुए फरमाया, अबू तलहा का कबूल इस्लाम ही मेरा महर है। हज़रत उम्मे सलीम भी दीगर मुसलमान ख़वातीन की तरह मजबूत अज़ाइम, पुख्ता इरादे और आला औसाफ की मालिक थी। पैगम्बर पाक अलैहिस्सलाम की तरबियत ने उनमें सब्र व क़िनाअत, बर्दाश्त व दरगुजर और दिलेरी और शुजाअत जैसी आला औसाफ पैदा कर दी थी। सही मुस्लिम की एक हदीस है कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम हज़रत उम्मे सलीम और अंसार की चंद ख़वातीन को ग़ज़वात में अपने साथ रखा करते थे। हज़रत अनस बयान करते हैं कि मैंने उहद के दिन देखा कि हज़रत आयशा और मेरी वालिदा उम्मे सलीम पानी की मशकें अपनी पीठ पर लाद कर लाती, ज़ख्मियों के मुंह में पानी डालकर फिर जल्दी से लौट जाती, फिर भर कर लाती और फिर पिलाती। हज़रत उम्मे सलीम ग़ज़वे हुनैन के मौका पर उम्मीद सी थी। अब्दुल्ला पैदा होने वाले थे। जब मक्का के लोग मैदान जंग से फरार होने लगे तो वो एक तेज़दार खंजर लिए हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के करीब आ गई। आप अलैहिस्सलाम ने पूछा, इस खंजर का क्या करोगी? आपने बड़े जोश से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अगर कोई काफिर आपके करीब आया तो उसका पेट चाक कर दूंगी। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ये जवाब सुनकर मुस्कुराए। भाईचारे से मुतालिक तारीख़ी इंसानी का निहायत ही ताबनाक, सबक आमोज और मुनफरिद कारनामा मवाख़ात हज़रत उम्मे सलीम ही के घर पर अंजाम पाया। हज़रत अनस बिन मालिक बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो आप अलैहिस्सलाम ने अंसार और महाजरीन को मेरी वालिदा के घर में जमा फरमाया और उनमें आपस में भाईचारा करवाया, जिसे मवाख़ात के नाम से याद किया जाता है। हज़रत अनस इब्न मालिक बयान करते हैं कि मेरी वालिदा उम्मे सलीम के यहाँ अबू तलहा से एक बेटा पैदा हुआ जिससे हम सब बहुत प्यार करते थे। एक दिन वो बच्चा फौत हो गया। वालिदा को बच्चे से उनकी उनसियत का अंदाज़ा था, लिहाजा उन्होंने बेटे के जस्तिखाकी को गुस्ल वगैरह देकर तैयार किया और फिर कमरे में लिटाकर चादर डाल दी। खुद भी बनाओ सिंगार करके तैयार हो गई। रात को जब अबू तलहा घर वापस लौटे तो उन्होंने आते ही बच्चे के बारे में पूछा। जवाब मिला कि वो आराम और सुकून में है। इस पर वो मुतमईन हो गए। खाना वगैरह खाकर फारिग हुए और बिस्तर पर सोने लेटे तो साबिर और शाकिर अहलिया ने एक अजीब सा सवाल कर दिया, अगर कोई आपके पास अपनी अमानत रखवाए और कुछ दिन बाद वापस मांगे तो क्या करेंगे? अबू तलहा ने जवाब दिया, उसे फौरन वापस कर देना चाहिए। बोली, अल्लाह ने हमें जो बच्चा दिया था वो हमसे वापस ले लिया है। अबू तलहा ने बच्चे की तदफीन की और खिदमत अक़दस में हाजिर होकर इकलौते बेटे की वफ़ात का बताया। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, अल्लाह तुम्हें बहुत जल्द औलाद अता फरमाएगा। चुनाचे अब्दुल्ला पैदा हुए तो वालिद उन्हें हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में ले गए। आप अलैहिस्सलाम ने अजवा खजूर चबाकर बच्चे की मुंह में डाली तो वो उसे चूसने लगा। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, देखो अंसार को खजूर से कैसी मोहब्बत है। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने सन 5 हिजरी में हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश से निकाह फरमाया तो वह वलीमा वाले दिन हज़रत उम्मे सलीम ने एक बर्तन में बहुत सा मलीदा बनाकर खिदमत अक़दस में पेश किया और कहा कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम से अर्ज़ करना कि इस हदिया को कबूल फरमाए। सन 7 हिजरी में ग़ज़वे खैबर के बाद जब नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत सफ़िया से निकाह फरमाया तो उम्मे सलीम ही ने उन्हें अपने घर में दुल्हन बनाकर तैयार किया। हज़रत अनस बयान करते हैं कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम जब हमारे मकान पर तशरीफ़ लाते तो हमारी वालिदा आप अलैहिस्सलाम के लिए चमड़े का फ़र्श बिछा देती, जिस पर आप अलैहिस्सलाम के लोला फरमाते। जब बेदार होते तो मेरी वालिदा हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम का पसीना और जड़े हुए बाल एक शीशी में जमा कर लिया करती।
सही बुखारी में हज़रत अनस से मरवी है, एक दिन अबू तलहा ने अपनी अहलिया उम्मे सलीम से कहा, आज हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की आवाज़ में ज़ौफ़ और नकाहत थी, मालूम होता है कि आप अलैहिस्सलाम फाके से हैं, अगर कुछ है तो खाने को भेज दो। वालिदा ने चंद रोटियाँ लपेट कर मेरे कपड़े की नीचे छुपा दी और मुझे रसूल पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में भेज दिया। उस वक़्त आप अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी में थे और आप अलैहिस्सलाम के साथ दीगर सहाबा कराम भी मौजूद थे। मैं सामने जाकर खड़ा हो गया। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने मुझे देखकर फरमाया, अनस, तुम्हें अबू तलहा ने रोटियां देकर भेजा होगा। मैंने अर्ज़ किया, जी हाँ। आप अलैहिस्सलाम ने सब सहाबा से फरमाया, चलो अबू तलहा के घर चलते हैं। उस वक़्त तकरीबन 80 सहाबा कराम मौजूद थे। आप अलैहिस्सलाम सबको लेकर हमारे घर आए। अबू तलहा घबरा कर उम्मे सलीम से बोले, हमारे पास तो इन चंद रोटियों के अलावा और कुछ भी नहीं। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम घर में दाखिल हुए और फरमाया, उम्मे सलीम, जो कुछ घर में है ले आओ। मेरे पास जो रोटियां थी वालिदा ने वो खिदमत अक़दस में पेश कर दी। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसका चूरा कर लो। फिर वालिदा ने इस पर घी डालकर मलीदा बनाया। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई और इरशाद फरमाया, अब 10-10 अफराद को खाने पर बुला लो। यूँ सहाबा कराम आते रहे और खूब पेट भर कर खाना खाते रहे, यहाँ तक कि तमाम 80 सहाबा कराम ने पेट भर कर खाना खा लिया। इमाम बुखारी लिखते हैं, उम्मे सलीम को यकीन था कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई है और खाने में अल्लाह बरकत अता फरमाएगा। रसूल पाक अलैहिस्सलाम अज़वाज मुत्तहरात के अलावा किसी औरत के घर नहीं जाते थे सिवाय हज़रत अनस की वालिदा उम्मे सलीम के। हज़रत अनस बयान करते हैं कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब मैं जन्नत में गया तो वहाँ आहट यानी किसी के चलने की आवाज़ पाई। पूछा, ये कौन है? फरिश्तों ने जवाब दिया, ईसा मलहान उम्मे सलीम है, अनस इब्न मालिक की वालिद माजिदा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह ताला उम्मे सलीम की रूह पाक को हमसे खुश फरमाए, हमारी वीडियो को हमारे लिए वसीला मग़फ़िरत बनाए। अल्लाह ताला हमें सहाबा कराम से मोहब्बत की तौफ़ीक दे। इस्लाम ज़िंदाबाद, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।